Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. The topic which we are going to discuss today is WKB approximation method for the quantum mechanical approximations. We were discussing the approximation methods. There are four approximation methods जिसमें आ जाती है perturbation theory, उसके बाद variational method, WKB approximation method, and this perturbation theory is of two types. One is non-degenerate and other one is degenerate perturbation theory, and similarly it is time independent and time dependent. However, today we are going to discuss the WKB approximation method, which is used under specific limitations. This method is named as Wenzel-Kramer-Brilliant WKB method, and this is useful for approximate treatments of systems with slowly varying potentials. मतलब ऐसे systems जिसमें जो potential है वो variate करता है slowly, वहाँ पर हम इस approximation method का इस्तेमाल करते हैं. अगर potential एक खास region तक कांस्टेंट रहे और वो रीजन जो है इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ डी ब्रॉये वेवलेंथ, तो तब WKB को हम सेमी क्लासिकल अप्रोक्सीमेशन की तरह देखेंगे, क्योंकि क्लासिकल लिमिट में लैम्डा बिकम्स सो स्मॉल दैट इट अप्रोचेस टू जीरो. लैम्डा वो वेवलेंथ है दैट इज एसोसिएटेड विद द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल. जो पार्टिकल्स के साथ अटैच्ड वेवलेंथ है उसको हम यहाँ लैम्डा कह रहे हैं. दिस इज डी ब्रॉये वेवलेंथ. और ये वेवलेंथ अगर जीरो हो जाती है तो फिर जो पार्टिकल है, ये ऑब्जेक्ट है, वो क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच से बाहर निकल आता है और वो सेमी क्लासिकल, ये क्लासिकल रेंज में आ जाता है, बल्कि इनफैक्ट क्लासिकल लिमिट में आ जाता है. तो क्लासिकल लिमिट पर ये मॉडल काम नहीं करता. इट वर्क्स इन सेमी क्लासिकल अप्रोक्सीमेशन, जहां पर हम ये कहते हैं कि डी ब्रॉये वेवलेंथ के इक्विवेलेंट उस ऑर्डर में आपके पास जो पोटेंशियल्स हैं, ये जो सिस्टम है वो मौजूद हैं और पोटेंशियल वेरी कर रहे हैं. इसमें करते हम क्या है कि हम निकालते हैं वो खास वेव फंक्शन या वो सोल्यूशन ऑफ द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन दैट इज एप्लीकेबल फॉर स्लोली वेरिंग पोटेंशियल्स. For this purpose, let's start with the general formalism. We are considering a particle of mass m which is moving in time independent potential. Yani potential is not changing with time. Time से ये independent है. It is just changing with respect to position. कि आपके पास जैसे जैसे r की या पोजीशन की वैल्यू चेंज हो रही है वैसे ही पोटेंशियल वेरी कर रहा है. इस केस में हम देखेंगे कि अब किस तरीके से वेव फंक्शन या सोल्यूशन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का क्या हो सकता है. Now the Schrodinger wave equation for the corresponding stationary state will be, this is the kinetic energy factor and this is the potential energy factor and this is the total energy. We define the energy in terms of Hamiltonians, and these Hamiltonians are the sum of kinetic energy and the potential energy. Kinetic energy को हम represent करते हैं in terms of momentum, and this is represented as minus h cut square over 2m into del square. This is the wave function, plus this is the potential v, and this is the psi wave function, and this is the total energy, and this is the wave function psi. This wave function is the wave function which is independent of the time, and it only depends upon the position of the particle, which is r. तो यहाँ से हम इसको थोड़ा सा rearrange करते हैं. We multiply 2m over h cut square on the both sides of equation with every element, and then we are left with del square psi plus 2m over h cut square v minus 2m over h cut square e, and this is the psi is equal to 0. Finally, we will multiply this equation with the negative sign, with minus, and we get del square psi plus 2m over h cut e minus v psi is equal to 0. Here 2m over h cut square e minus v is the term which has momentum within it. This 2m e minus v term will gives you the momentum, square of the momentum, और जब हम इसका square root लेते हैं तो हमारे पास momentum आ जाता है, and this momentum is nothing else than the classical momentum at some position r. Now this del square psi is plus p square over h cut square, and psi is equal to 0. Here we will simplify our relationship and we will convert
दिस इक्वेशन इन वन डायमेंशनल फॉर्म, और हम इस r को x y z तीनों डायमेंशंस में करने की बजाय सिर्फ x में ले जाते हैं ताकि हम कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई कर सकें. दिस इज del square x psi x plus 1 over h squared square p square x and then psi x. This psi x is the wave function, और हम देखेंगे कि इसकी वैल्यू हम कैसे इसमें पुट कर सकते हैं, या हम कोई इसका सोल्यूशन खुद से सपोज करेंगे और फिर हम देखेंगे उसके डेरिवेटिव्स लेने के बाद कि क्या वैल्यू आती है इस वेव फंक्शन की. Now, if particle is moving in constant potential, then the solution of the equation will be psi wave function will be equal to a exponential. This a is the amplitude exponential plus minus iota p dot r by h cut. This p is the momentum, r is the position, and this a is the amplitude. But in this specific problem, we are assuming that potential is not constant. जब potential constant नहीं है बल्कि ये slowly variate कर रहा है with respect to the position r, then we will use the WKB approximation to find out the solution of this Schrodinger wave equation and to find out the value of this wave function. In other terms, we will find out the value which will tell us that where the particle is. Wave function is actually gives us an estimate that where the particle can be present in this whole potential term. तो वहां पर हम देखेंगे कि इस वेरिंग पोटेंशियल में किस जगह पर पार्टिकल मौजूद है, उसकी मौजूदगी को का पता चलाने के लिए हमें वेव फंक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा. तो अभी फिलहाल के लिए हम ये करते हैं कि हम ये कहते हैं कि क्योंकि जो पोटेंशियल है इट इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट ओवर सेवरल ऑर्डर ऑफ द डी ब्रॉये वेवलेंथ, देन डी ब्रॉये वेवलेंथ इज इक्वल टू h over p and here h over 2 me minus b under root is the value of this de Broglie wavelength. तो यहाँ से सोल्यूशन जो है इक्वेशन नंबर 2 यानी श्रोडिंजर वेव इक्वेशन का सोल्यूशन जो है वो कुछ इस फॉर्म का हो सकता है. यानी हम ये कह सकते हैं कि दिस साई विल बी इक्वल टू दिस एम्पलीट्यूड a which is the function of the position or which is independent of the time, and then exponential iota s over h cut. Here this s is also independent of time, और ये दोनों a और s रियल फंक्शंस हैं जिनकी वैल्यू हमें मालूम करनी है. इनकी वैल्यूज मालूम करने के लिए हम ये जो वेव फंक्शन है इसको डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x. जब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो दिस डेरिवेटिव एट फर्स्ट विल अप्लाई ऑन दिस ax and it will give us dA by dx and this term will be retained as it is. Now this a will remain as it is and the derivative will be applied on this exponential term and we will get plus iota a over h cut, then exponential iota s over h cut and this s will be now ds over dx. क्योंकि exponentials का जब हम derivative लेते हैं तो हम कैसे उसको लिखते हैं, हम लेते हैं exponential as it is, then we will take derivative of the term over the exponential that is iota s over h cut, उसको हम लिखेंगे और फिर ये जो s है क्योंकि this is again the function of x तो ये भी derivate होगा तो इसको हम ds over dx की फॉर्म में लिखेंगे. Now to make it simplify, we have dA over dx plus a iota over h cut ds over dx and this exponential term is placed over here outside the brackets. This was the first derivative with respect to x. But to attain the Schrodinger wave equation, which is a second order differential equation, we need another derivative of this d psi over dx. So we will apply a second derivative. This second derivative will give us d square x, d square psi over dx square, and then आपके पास मौजूद था ये टर्म मौजूद थी तो इसमें पहले डेरिवेटिव अप्लाई होगा डी ओवर डी एक्स प्लस ए आयोटा ओवर एच का डी एस ओवर डी एक्स पर, और सेकेंडली डेरिवेटिव अप्लाई होगा दिस एक्सपोनेंशियल टर्म पे. तो पहले वाली टर्म पर जब हम डेरिवेटिव को अप्लाई करते हैं तो वी गेट द आंसर डी स्क्वायर ए ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा ओवर एच कट ए डी स्क्वायर एस ओवर डी एक्स स्क्वायर एंड देन प्लस आयोटा ओवर एच कट डी ए बाई डी एक्स डी एस ओवर डी एक्स एंड देन एक्सपोनेंशियल टर्म एज इट इज आ जाएगी. सेकेंडली ये टर्म हमारे पास एज इट इज आ जाती है डी ओवर डी एक्स जो ये मौजूद थी जिसका कि हमने डेरिवेटिव लिया हुआ है. यानी अगर हम देखें यहाँ से भी मैं आपको बताने समझाने की कोशिश करूँ तो इसका जब डेरिवेटिव लेते हैं ना इस टर्म का दैट इज डी स्क्वायर ए ओवर डी एक्स स्क्वायर, फिर आप इसका लेते हैं उसमें आप आयोटा ए ओवर एच का डी स्क्वायर एक्स ओवर डी एक्स स्क्वायर लेते हैं,
फिर क्योंकि ए भी वेरी कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इस पे भी डेरिवेटिव अप्लाई होगा। आप लिखते हैं आयोटा ओवर एच स्क्वायर डी एस ओवर डी एक्स डी ए बाई डी एक्स। अब आप एक्सपोनेंशियल वाली टर्म का लेते हैं, ये एज इट इज आ गई टर्म, और एक्सपोनेंशियल का जब आप लेते हैं तो यू गेट आयोटा ओवर एच स्क्वायर एक्सपोनेंशियल आयोटा एस एक्स ओवर एच स्क्वायर और डी एस ओवर डी एक्स। थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करते हैं, आयोटा वाली टर्म्स को सेपरेट कर देते हैं, और पहले हमने क्या किया है, यहाँ से आयोटा ओवर एच स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया है इनसाइड, so we get iota over h square dA over dx ds over dx a iota square over h square square ds over dx whole square and this exponential, this is as it is. For the next step हम क्या कर रहे हैं, हम iota वाली जो टर्म्स हैं उनको सेपरेट कर रहे हैं, और विदाउट आयोटा जो रियल टर्म्स हैं उनको सेपरेट कर रहे हैं। तो उनको सेपरेट जब करेंगे दैट इज डी स्क्वायर ए ओवर डी एक्स स्क्वायर एंड देन this term minus a over h cut square, then ds over dx whole square, and then this term will be here iota over h cut a d square x over dx square, and then this term, ये जो दोनों टर्म्स हैं ये आपको ऐड होके 2 आयोटा दे देंगी, 2 आयोटा over h cut dA over dx ds over dx, and then this is the exponential term. अब ये जो डी स्क्वायर सेकंड डेरिवेटिव आपने जो एक्सपोनेंशियल इसका वेव फंक्शन का लिया है, इसको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में पुट कर दें। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव था इस वेव फंक्शन का, उसके बाद प्लस था, और देन वी हैव पी स्क्वायर ओवर एच स्क्वायर स्क्वायर, एंड देन वी हैव साई एक्स, और साई की जो वैल्यू है वेव फंक्शन की दैट इज ए एक्सपोनेंशियल आयोटा एस ओवर एच है, वो हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। अब ये हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल टर्म है दैट इज एक्सपोनेंशियल आयोटा एस एक्स ओवर एच कट एज इट इज बाहर आ गया, और ये जो पी स्क्वायर ए ओवर एच कट स्क्वायर वाली टर्म है इसको भी हम ले जाते हैं रियल वाली टर्म की तरफ, आयोटा के अलावा वाली टर्म में ऐड कर देते हैं, और एच कट स्क्वायर ओवर ए से हम इस जो रियल वाले पार्ट्स हैं आयोटा के विदाउट वाले उनको हम कर देते हैं मल्टीप्लाई। So this term will be h cut square over a into d square a over dx square. This term will be ds over dx whole square because h cut square over a square से हमने इसको multiply किया, and this term will be p square plus here this is iota h cut 2 dA over dx ds over dx, and then plus a d square s over dx square. ये हमारे पास साथ में एक्सपोनेंशियल टर्म इज इक्वल टू 0 आ जाती है। दिस इज फॉर द वेव फंक्शन, ये जब a इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो दिस विल बिकम वेव फंक्शन, एंड देन फिर वेव फंक्शन क्योंकि 0 नहीं हो सकता है तो बाकी की जो टर्म है इक्वेशन की वो 0 हो जाएगी और उसको हम लेंगे। दिस टर्म कैन नॉट बी 0, जो चीज 0 हो सकती है वो ये चीज हो सकती है। इसको हम क्या करते हैं, ले लेते हैं अपने पास this term is the real part, this term is the imaginary part, and here is the exponential which cannot be 0. अब रियल पार्ट को और इमेजिनरी पार्ट को हम सेपरेटली डील करेंगे, और इन दोनों पार्ट्स को हमने 3 डायमेंशनल फॉर्म में जब लिखते हैं तो ये जो डी स्क्वायर एक्स वाई और जेड को सिंपली डेल स्क्वायर की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो दिस इज ए इंटू एच कट स्क्वायर ओवर ए डेल स्क्वायर ए माइनस डेल एस होल स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, and then iota h का 2 del a del s plus a del square s is equal to 0. अब इसको जब सेपरेटली हम डील करेंगे तो रियल पार्ट को हम लिखते हैं a h कट स्क्वायर ओवर a del square a minus del s square plus p square r which is equal to 0. This is equal to 0 की फॉर्म में आ गया हमारे पास, एंड सेकेंडली हम इस टर्म को लेते हैं दैट इज del s square is equal to p square which is equal to 2m e minus v. ये जो टर्म है इसमें फर्स्ट वाली यहाँ पर a जो है दिस इज 0, सिमिलरली h कट स्क्वायर a डेल स्क्वायर a इज आल्सो 0, दिस टर्म इज 0। क्यों ये 0 है, क्योंकि h कट स्क्वायर बहुत स्मॉल है, इतना स्मॉल है कि वो क्लासिकल लिमिट में उसका इफेक्ट निगलेक्ट किया जा सकता है, और आपके पास सिंपली डेल s स्क्वायर प्लस p स्क्वायर जो है ये इक्वेट हो जाते हैं आपस में, और p की वैल्यू 2m e माइनस v है। अब आप इमेजिनरी टर्म लीजिए और इसमें आयोटा एच कट की बजाय सिर्फ 2 डेल ए डेल एस प्लस ए डेल स्क्वायर एस इज इक्वल टू 0 लिखिए। अब आपके पास क्या आता है,
this ds over dx whole square is equal to 2me minus bx अंडर रूट की फॉर्म में आ जाएगा। ये मतलब जो आपने यहाँ से ये लिया हुआ है, दिस इज ds by dx whole square and this p is equal to 2me minus v। हम दोनों साइड पर लेते हैं स्क्वायर रूट लेने के बाद ds by dx becomes equal to plus minus 2mv minus e which is plus minus px जो मोमेंटम हो जाता है। दिस इज वन डायमेंशनल केस। अब इसी को जब लेते हैं, दिस इज 2 da by dx ds by dx प्लस a d स्क्वायर s ओवर dx स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाता है। और फाइनली हमारे पास ये टर्म ds by dx को हम px पुट कर देते हैं और यहाँ पर इसको फर्दर देखते हैं कि कैसे सॉल्व किया जा सकता है। अब ये देखें 2 da by dx एंड इसको हमने px पुट कर दिया प्लस a दिस इज डी स्क्वायर एक्स ओवर डी स्क्वायर एस ओवर डी एक्स स्क्वायर है। आप इसमें भी डी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स डी एस बाई डी एक्स पुट कर दें इसको और वो भी आपके पास मोमेंटम की फॉर्म में चला जाएगा। then you have put ds by dx as px और ये जो इस साइड पर a था उसको आपने दूसरी साइड पे ले जाके डिवाइड कर दिया है। दिस इज 2 by a da by dx and then px, this is d by dx into px। if we have natural log of a और it is independent on x और इसका हम डेरिवेटिव लेते हैं तो वो हमारे पास बनता है 1 over a da over dx। तो इसका मतलब है 1 over a da over dx को हम नेचुरल लॉग ऑफ a का डेरिवेटिव की फॉर्म में लिख सकते हैं। सिमिलरली आपके पास अगर कुछ ऐसा मौजूद हो 2 ln a प्लस ln px मतलब नेचुरल लॉग ऑफ px और नेचुरल लॉग ऑफ a, इनका आप डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x तो आपके पास क्या बनेगा जब आप इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं, यू गेट 2 1 over a da over dx प्लस 1 by px dp over dx। तो हम अगर थोड़ा सा इस इक्वेशन को रीअरेंज करें और px से डिवाइड कर दें दोनों तरफ, दोनों ही को, तो आपके पास बनेगा 2 d by dx नेचुरल लॉग ऑफ a प्लस 1 over px dp over dx। तो ये आपके पास इस फॉर्म में चला जाता है विच इज डेरिवेटिव ऑफ 2 नेचुरल लॉग ऑफ a प्लस नेचुरल लॉग ऑफ px विद रिस्पेक्ट टू x तो इज इक्वल टू 0। इन केस ऑफ नेचुरल लॉग आपके पास ये ऐसे केसेस होते हैं कि जब आप नेचुरल लॉग 2 नेचुरल लॉग ऑफ a को आप नेचुरल लॉग ऑफ a स्क्वायर लिख सकते हैं और जब ये दो क्वांटिटीज ऐड हो रही है नेचुरल लॉग में, ये कंडीशन होती है, दीज आर द रूल्स कि आप एडिशन वाले को मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। यू विल गेट नेचुरल लॉग ऑफ a स्क्वायर px and derivative is applied on it which is equal to 0. Now we have to integrate the equation number 12 and the equation number 11 which we have made over here, that was ds by dx is equal to plus minus px। दोनों को हम डेरिवेट करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, सॉरी ds को हम इंटीग्रेट करते हैं होल सरफेस के लिए 0 to s एंड दिस इज प्लस माइनस px ds और ये इंटीग्रेशन में आ गया आपके पास और इसकी वैल्यू को आपने लगा दिया। सेकेंडली आप जब इसको करते हैं तो इसकी इंटीग्रेशन आपको देती है ln a square px is equal to some constant of integration k। अब आप दोनों साइड पर एक्सपोनेंशियल जब लेते हैं तो दिस एक्सपोनेंशियल नेचुरल लॉग ऑफ a square px is equal to एक्सपोनेंशियल ऑफ k एंड देन एक्सपोनेंशियल नेचुरल लॉग खत्म हो जाता है, आप px को दूसरी साइड पे डिवाइड करते हैं एंड देन स्क्वायर रूट लेते हैं तो आपके पास ax इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ k अंडर रूट एंड अंडर रूट ऑफ px। अंडर रूट लगाएंगे तो प्लस माइनस की टर्म भी आ जाएगी। अब ये जो अंडर रूट ई के है इसको आप सी का नाम दे देते हैं और आपके पास ये आ गई वैल्यू किसकी, एम्पलीट्यूड की, दैट इज प्लस माइनस सी ओवर अंडर रूट पी एक्स। नाउ बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ 13 from equation 13 and 14 in equation number 4, equation number 4 was the value of wave function which we has given it और हमने कहा था ये possible solution हो सकता है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का WKB अप्रोक्सीमेशन के तहत AR E iota S over H कट। अब इसमें S की वैल्यू और A की वैल्यू लगाएंगे। A की वैल्यू हमने अभी निकाली है दैट इज C over PX और S की वैल्यू हम पीछे निकाल चुके हैं दैट इज इक्वल टू PDX। ये देखिए PX DX और इंटीग्रल, ये वाली वैल्यू हम दोनों इसमें पुट करते हैं तो दैट इज प्लस माइनस आयोटा ओवर एच कट। इस वेव फंक्शन में हमने इसको पुट किया है। यहाँ से हमें नजर आ रहा है कि ये जो एम्पलीट्यूड है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट पी एक्स, जिसका मतलब है कि जो प्रोबेबिलिटी है फाइंडिंग ऑफ पार्टिकल इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम ओवर द रेंज x to x plus dx। दिस इज द क्लासिकल पार्टिकल, इससे हमें ये पता चल रहा है।
और हम ये पता चला सकते हैं कि हाउ मच टाइम इट विल टेक टू ट्रेवल द डिस्टेंस dx, और कितना होगा वो टाइम, इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। अगर वेलोसिटी पार्टिकल की कम होगी तो इट विल टेक मोर टाइम, अगर ज्यादा होगी तो फिर उसके अकॉर्डिंगली टाइम का और इसका हिसाब किताब हम पता चला लेंगे। नाउ वी हैव थ्री केसेस। अगर तो एनर्जी जो है वो पोटेंशियल से ज्यादा होगी तो फिर क्या होगा, इसको हम कहेंगे क्लासिकली अलाउड रीजन, और इसमें जो हमारे पास वेव फंक्शन है वो दो तरह से होगा, प्लस वाला और माइनस वाला। हमने इनको लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पर लिया हुआ है, दोनों को ऐड कर लिया है। और अगर हमारे पास एनर्जी जो है सिस्टम की इट इज लेस देन द पोटेंशियल, तो फिर क्लासिकली फॉरबिडन रीजन होगा इसके लिए, और इसके लिए जो मोमेंटम है इट विल रिमेन इमेजिनरी, और एक्सपोनेंट्स जो हैं वो रियल, एक्सपोनेंशियल्स जो हैं वो रियल हो जाएंगे। तो इनको रियल वैल्यूज में लिखेंगे। आयोटा देखें खत्म हो गया इसमें से, और ये जो मोमेंटम है इसको हमने इमेजिनरी टर्म में लिखा है, यानी इट इज इन द मॉड एंड इट इज अंडर रूट, और माइनस पी की जब वैल्यू आएगी अंडर रूट में तो वो आयोटा बन जाती है। थर्ड केस आता है हमारे पास जब ये एनर्जी बिकम्स इक्वल टू द पोटेंशियल। जब ये पोटेंशियल के इक्वल हो जाती है तो हमारे पास मोमेंटम बिकम्स इक्वल टू जीरो, बिकॉज मोमेंटम इज इक्वल टू ई माइनस वी वाली टर्म आती है। तो ई इज इक्वल टू वी हुआ तो मोमेंटम जीरो हो जाता है। जब मोमेंटम जीरो हो जाता है तो जब हम इस वेव फंक्शन में मोमेंटम की वैल्यू को पुट करते हैं तो ये देखें, ये हमारे पास इन्फिनिट हो जाता है वेव फंक्शन, जिसका मतलब है कि अब जो वेव फंक्शन है इट इज इनफिनिट, यू कैन नॉट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द वेव फंक्शन एंड मोमेंटम इज जीरो। इस पॉइंट पर जाके जो पार्टिकल है वो स्टॉप होगा, और स्टॉप होने के बाद इस पॉइंट S1 SI से वो टर्न बैक हो जाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो इस किस्म की लिमिट को हम नाम देते हैं क्लासिकल टर्निंग पॉइंट, यानी ये वो पॉइंट है जहां पर जाकर जिसके बाद क्लासिकल रीजन शुरू हो जाता है और इस रीजन से जो पार्टिकल है वो वापस आ जाता है मोड़ ऑपोजिट डायरेक्शन। तो अब हम देख लेते हैं कि डब्ल्यू के बी अप्रोक्सीमेशन की क्या क्या वैलिडिटी, कहाँ पर ये वैलिड है। तो उसके लिए हमारे पास जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन थी उसमें ये दो टर्म्स थी, ए डेल्टा एस स्क्वायर प्लस आयोटा एच कट ए डेल स्क्वायर एस। ये दोनों टर्म्स जो है मोमेंटम वाले टर्म्स है, यहाँ पर एस की वैल्यू मोमेंटम के बराबर है। ये जो क्वांटिटीज है ये बहुत स्मॉल है और इक्वेशन नंबर 8 में ये मौजूद थी। ये देखें, यहाँ पर हम ये वाली वैल्यू लेते हैं डेल स्क्वायर एस वाली, और यहाँ से हम वैल्यू ले लेते हैं ये वाली डेल एस स्क्वायर वाली, बाकी टर्म्स को भी हम नहीं ले रहे हैं। हम ये कहते हैं कि दिस एच का डेल सेकंड डेरिवेटिव ऑफ दिस मोमेंटम इज लेस देन फर्स्ट डेरिवेटिव के स्क्वायर के, और फिर इसको दूसरी साइड पर जाके जब डिवाइड करते हैं दिस वैल्यू इज लेस देन वन। और आप ये देखें कि सेकंड टू डैशेस का मतलब है सेकंड डेरिवेटिव और फर्स्ट डैश का मतलब है फर्स्ट डेरिवेटिव। तो अगर हम फर्स्ट डेरिवेटिव का वन बाय फर्स्ट डेरिवेटिव या इनवर्स ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव का डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमारे पास कुछ इस तरह से ये चीज बनती है, दैट इज एच का, और इस पे पावर रूल लगाते हैं। जब माइनस पावर डी एस ओवर डी एक्स और पावर में एक माइनस करेंगे तो माइनस टू हो जाएगा, देन ये जो अंदर वाला फैक्टर है इसका हम डेरिवेटिव लेंगे, दैट इज डी टू एस ओवर डी एक्स स्क्र। नाउ दिस डी टू एस ओवर डी एक्स स्क्र बाय डी एस ओवर डी एक्स होल स्क्र आ जाएगा, और ये माइनस साइन क्योंकि मॉड में लिया हुआ है तो हम इसको ये खत्म हो जाएगा, और डी टू एस वाला डेरिवेटिव एस डबल बार और सिंगल वाला आपके पास एस सिंगल बार की फॉर्म में आ जाएगा। और ये आपके पास जो यहाँ पर कंडीशन थी, इट कैन बी चेंज्ड एज डी बाई डी एक्स एच कट ओवर एस बार। दिस एस बार या डी एस ओवर डी एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस पी एक्स, तो आप इसकी जगह पर पी एक्स पुट करते हैं, और ये जो पी एक्स है ये आपके पास किसके बराबर होता है, ये आपके पास बराबर होता है डी ब्रॉये वेव इक्वेशन से लैम्डा इज इक्वल टू एच कट ओवर टू पी ओवर पी एक्स। दिस लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा बाय टू पाई, so this is h cut over px, and आप ये जो h कट ओवर पी एक्स है इसको लिख सकते हैं लैम्डा की फॉर्म में। सो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ लैम्डा विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब जो वेवलेंथ है डी ब्रॉय वेवलेंथ इट इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू x, और ये वैल्यू इसकी इसमें जो चेंज है इट इज लेस देन वन। यानी यहाँ से हमें ये पता चलता है कि अगर जो मोमेंटम है बहुत स्मॉल हो तो जो वेवलेंथ है इट शुड बी वेरी लार्ज, लेकिन यहाँ पर हमें देख रहे हैं कि इसमें जो चेंज है वो बहुत स्मॉल है और इतनी स्मॉल है कि इट इज लेस देन वन। तो जब ये चेंज नहीं हो रही, इसके साथ टैग वेव को आप वेवलेंथ को नहीं आप मेजर कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब है मोमेंटम किसी जगह पर उसका जीरो है, और जीरो होने की वजह से वो जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी जीरो है और वो किसी जगह पर स्टिल है, वो मूव नहीं कर रहा है।
तो उसकी वेवलेंथ इतनी लार्ज हो चुकी है जिसको हम मेजर नहीं कर पा रहे हैं। इसकी वजह से क्या होगा, इसका जो वेव फंक्शन होगा दैट विल बी इनफिनिट। तो ये फिर आपके पास यहाँ पर WKB अप्रोक्सीमेशन वैलिड नहीं रहेगी और आपके पास ये कहलाता है क्लासिकल टर्निंग पॉइंट। तो दिस इज द वैलिडिटी ऑफ WKB अप्रोक्सीमेशन कि क्लासिकल रीजन में जाकर दिस approximation will not be valid and we will have to form some other kind of wave functions for this.